एंड सबसे पहले तो समझना है कि व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, मे बी शॉर्ट क्वेश्चन, मे बी 3 मार्क्स। ओके, ये लाइन याद रखनी है माइंड में हमेशा। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर synchronizes the activities of different departments. Now ये वर्ड जनरली याद नहीं होता बच्चों को। synchronizes, इसका one other synonyms that you can write, it integrates. So the process by which a manager integrates the activities of different departments in an organization is called as coordination. Coordinate करना. Whenever we organize a program in the school or any event, so generally there is a person who coordinates the activities. Suppose मान लो कि घर में अगर शादी है किसी की, तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई फ्रूट्स है, कहीं से मिठाई आएगी, कहीं पे डेकोरेशन होगा, तो क्या होता है कि वहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज़ को जो है ना डिफरेंट पीपल में बांट दिया जाता है कि भाई यू विल लुक आफ्टर द फूड आइटम्स, यू विल लुक आफ्टर द डेकोरेशन, you will look after the stage, you will look after the cameras, photos, videos. So when we try to integrate, when we try to synchronize the activities of all these persons, so that is called coordination. And this act of coordination is done by the manager. One more important point, this is very important. It is the essence of management. It is the very much needed function of management. In fact, coordination is not there among the important 5 functions of management: planning, organizing, staffing, controlling, and directing. But still then, for all the above, like all these 5 functions, important functions must be there. Without coordination, Because organization cannot achieve its goals. हाँ, जैसे एक माला होती है ना, माला का थ्रेड है कोऑर्डिनेशन, उसका धागा। अगर धागा ही मजबूत नहीं है तो माला टूट जाएगी। तो दिस कोऑर्डिनेशन इज जस्ट लाइक अ थ्रेड इन द गार्लैंड। सो इफ द थ्रेड इज टफ, इट इज स्ट्रांग, all the motis will be intact. The garland will not get broken easily. So this is such thing. It is the every essence of the organization. The very essence. कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि why coordination is called the essence of management. So you can write the importance of coordination in this. कि why this is important. एक और है यहाँ पे coordination का key sentence. It is a force that binds all the other functions of management. Just now I was telling you about it. All the important functions like planning, organizing, staffing, controlling, and directing, they are all integrated together. They are all synchronized by the act of coordination. Coordination is very much related with, cooperation. Cooperation हम लोग बहुत बार यूज करते हैं ना, प्लीज कोऑपरेट। कोई बुजुर्ग आदमी है, तुम बैठे हो बस में, उसको सीट की ज़रूरत है, तो यू हैव टू कोऑपरेट, है ना। तो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बोथ गो टुगेदर। वेयर देयर इज कोऑर्डिनेशन देयर मस्ट बी कोऑपरेशन। इज दैट क्लियर? सो ओके, सो इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। Then comes characteristics. Characteristics of coordination. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ द एफर्ट्स। इसके डेफिनेशन में ही है सिंक्रोनाइजेशन। इट सिंक्रोनाइजेस, इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑफ ऑल द पर्सन्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। Okay, so integration is very much required. Otherwise, what will happen? There will be conflict. There will be conflict among the persons, among the departments. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में conflict हो जाता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलता है कि यस आई वांट टू गिव डिस्काउंट 10%, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं, प्लीज डू नॉट गिव डिस्काउंट, आई वांट द फुल मनी, क्योंकि ऑल द मनी कलेक्टेड बाय द मार्केटिंग मैनेजर गोज टू द फाइनेंस मैनेजर।
तो अगर फाइनेंस मैनेजर अगर परमिशन नहीं दिया मार्केटिंग मैनेजर को टू गिव डिस्काउंट्स, तो कन्फ्लिक्ट हो गया ना दोनों में. तो नाउ कम्स द मैनेजर. मैनेजर यहाँ पे ही विल ट्राई टू सिंक्रोनाइज, ही विल ट्राई टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ द मैनेजर्स. तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, वो मतलब सेटल करता है कन्फ्लिक्ट्स को. सो देयरफॉर दिस इंटीग्रेशन एफर्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर. द नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ एक्शन. बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते. यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है? यूनिटी का मतलब होता है वन डायरेक्शन, समथिंग विच गोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन, वन डायरेक्शन. वन डायरेक्शन में कौन जाएगा? ऑल द डिपार्टमेंट्स विल गो टुवर्ड्स वन डायरेक्शन. No, I don't like that. So, you know, all the departments, they have one single goal, objectives that has to be achieved by the organization. So that is called unity of action. That means all the different departments in the organization, they should try to achieve the goal of the organization. So that is called unity of action. थर्ड वन, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस. ये तुम्हारे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी था, इसमें भी है. ऑल परवेसिव, ये भी उसमें था, इसमें है. ये वाला देखो, इट इज़ ए डेलिबरेट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. इट इज जस्ट लाइक ए थ्रेड इन द गार्लैंड, लाइक दैट. इट इज ए डेलिबरेट फंक्शन. डेलिबरेट का मतलब होता है कॉन्शियस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्शियस. Okay, now comes to why coordination is important for an organization. For its growth. तो सबसे पहले तो growth. It is very much required for the growth and expansion of the company. So without the success of the departments, the organization cannot develop. Am I right? So it is so much required, right? Okay, then comes specialization. Specialization का मतलब होता है conflict with the specialist. यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि it is an age of specialization where the different people, I mean they are generally the company hires the specialist. We have specialist doctors, so we have specialists for each and every function, right? So कभी कभी क्या होता है कि जो स्पेशलिस्ट और जो नॉर्मल एम्प्लॉयज होता है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि स्पेशलिस्ट पर्सन जो होते हैं वो अपनी सुनेंगे, किसी दूसरे की नहीं सुनेंगे. तो अगेन यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाएगा. जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो स्पेशलिस्ट आए हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, कन्फ्लिक्ट. तो दिस कन्फ्लिक्ट इज अगेन रिजॉल्व बाय कोऑर्डिनेशन. ओके, एंड द थर्ड इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये अलग से लिखने के लिए आता है, इसको एक्सपेंड करने के लिए आता है. डेलिबरेट फंक्शंस मतलब इट इंटीग्रेट्स द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सारा का सारा कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन या सिंक्रोनाइजेशन पे चलता है. तो बस ये अगर कीवर्ड्स अगर तूने याद रख लिया ना कि कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंक्रोनाइजेशन या इंटीग्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें तुम एक्सपेंड कर लोगे. इट इज़ सो सिंपल. तो यहाँ पे फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के. तो उनको डिफरेंशिएशन हो जाता है, उनके बीच में भेदभाव हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है. जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया था मार्केटिंग का और फाइनेंस मैनेजर का, तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है. तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है, उसको सेटल करने की ज़रूरत है. That is the function of a manager. ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर है वो ही वांट्स टू सेल मोर, एंड फाइनेंस मैनेजर ही नीड्स मोर मनी, मोर प्रॉफिट. हालांकि दोनों का मकसद एक ही है, ग्रोथ एंड प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बट स्टिल देन देयर शुड बी अ फोर्स, अ पर्सन, समथिंग विच बाइंड्स देयर एफर्ट, जो उनके एफर्ट्स को बाइंड करे, जो इंटीग्रेट करे. So there comes coordination. So like this is all about coordination.